Good morning, dear students. Today we are here with our English topic, Chapter 3, Discovering Tut, the Saga continues, Part 2. We have already completed Part 1, and in that part we have discussed the summary of the chapter. Right, so this is written by A.R. or the author of this chapter is A.R. Williams, right? And it is not a story; it is a report regarding the Tut, right? One of the teenage pharaohs. We have discussed about it. Okay, and he is one of the powerful uh, pharaohs, we can say, of his dynasty, and he belonged to a powerful dynasty, right? And his dynasty ruled for over a long time, right? So here in this report the point is that this pharaohs have a mysterious death, right? He died at a very young age and his death is mysterious. Okay, so to sort out that mysteries after many years, after around 3300 years, right, we are trying to find out what are the mystery behind his death, right? Whether it is a murder or something else. Okay, so one of the British archaeologists named Howard Carter, right, he discovered a storm in 1922 to find out this mystery, and so on. We have read about in the summary, right? And we have also started in chapter wise reading. Okay, so let's move on. The mummy is in very bad condition. Last we have discussed that. Okay, in last part one, right, we have discussed about that how that body has been taken or that mummy has been taken to the CT scan, right? So the mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s, right? So we have discussed that one of the anatomy professor tried to x-ray it, okay, and then after it also have been taken to CT scan procedure. Okay, but what happened that in 1920s that Howard Carter, who discovered the tomb, right, in 22, then after he started investigating, and what happened that as that mummy was been cemented and hardened enough, right, so it was not possible to take it out. That's why he also uses chisel and everything, right? He even tried to melt it at a desert temperature, right? That was desert heat of 149 degree Fahrenheit, but nothing works. Okay, so then he decided to take it out with the help of chisel and all, right? So what happens that many of the major joint of that mummy had been separated or have been broken, right? So now the condition of that mummy has been वर्सन वी कैन से. तो क्या हो गया कि मम्मी का बहुत बैड कंडीशन की में है बिकॉज वट एवर दैट कार्टर डिड, राइट, सेड जाही हवास. वी ऑल नो हु वाज जाही हवास, राइट? हमने समरी में डिस्कस किया था. जाही हवास वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज इन 2005. यहाँ पे भी दिया है, देखो. जाही हवाज कौन है? ये सेक्रेटरी जनरल है ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज में. ठीक है, वो ये बता रहे हैं कि 1920s में कार्टर ने जो हालत की उसके बाद मम्मी बहुत बुरी कंडीशन में, बिकॉज इट हैव बीन ब्रोकन. एज ही leaned over the body for a long first look, Carter that is was the British archaeologist who in 1922 discovered Tut's tomb after years of futile searching, right? So what he's saying, Zahi Hawass बता रहे हैं उसके उस बॉडी को, यानी टच की बॉडी को फर्स्ट लुक में, उसको फर्स्ट टाइम देखते ही वो बता रहे हैं कि कार्टर, हॉवर्ड कार्टर. कौन था कार्टर? हॉवर्ड कार्टर था. जो कब आया था? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है. 1920 में 22 में उसने टच के टॉम को डिस्कवर किया था बहुत मेहनत के बाद. Futile searching, that is after many hard work, right? Its contents, though haphazardly ransacked in antiquity, were surprisingly complete. They remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legends. सो फ्यूटाइल रिसर्च में क्या हो गया? सी उसने दूसरा क्या कहा अभी कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हावर्ड कार्टर था, राइट, वो 1922 में आया, उसने टर्च के टॉम को डिस्कवर किया,
राइट बट उसकी जो रिसर्च थी वो क्या थी, यूजलेस थी. उसने बहुत हार्ड वर्क किया उसको फाइंड आउट करने में, बट देन आफ्टर उसने उस सिचुएशन को बहुत वर्स कर दिया. राइट वो वर्स कैसे हुआ, क्योंकि उसकी रिसर्च कोई काम नहीं आई, वो ना ही कुछ कर पाया, उसने सिर्फ डिस्कवर किया मम्मी को, बट देन आफ्टर उस पर उसे जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना था इट वाज नॉट बीन सक्सेसफुल. ओके सो वही बता रहे हैं यहाँ पे कि इट्स कंटेंट्स, राइट उसके जो कंटेंट्स थे, दो हैजटली रेंसेक्ड, यानी इट वाज लूटेड. रेंसेक्ड का मतलब होता है लूटेड इन एंटिक्विटी, मतलब हैजटली ही हैज टेकन मेनी ऑफ द रॉन्ग डिसीजंस, राइट, एंड वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट. दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन, बट नो डाउट कि उस जैसे मैंने बोला था कि कार्टर ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, राइट ही फाउंड मेनी ऑफ द थिंग्स विद दैट फेरोज के कॉफिन के साथ उसे बहुत सारी चीजें मिली, राइट जैसे गार्लैंड्स ऑफ विलोज, ऑलिव लीव्स थे, वाइल्ड सेलरी थे. ओके देन रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, टट्स के टॉम में से मैंने पहले भी बताया कि किंग्स और उन लोगों के जो टॉम्स होते हैं या उनकी जो कब्रें या वॉट एवर वी कैन से वो होती है, उसमें बहुत सारी सी इससे जब हम रिसर्च उस जमाने का हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, राइट थ्रू दैट डेड बॉडी वी कैन एबल टू जज इट आउट कि अगर कोई कॉमन पर्सन है तो उसके उसके साथ जो दफनाया गया होगा वो जो चीजें होगी वो बहुत कॉमन होगी, बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ किंग तो वो जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा रॉयल होगी, राइट उसमें बहुत सारी हीरे जवाहरात होंगे, लॉट्स ऑफ मनी एंड लाइक दैट. ओके सो डायमंड्स एंड ऑल सच थिंग्स वी कैन फाउंड इन सच अ टाइप्स ऑफ रॉयल कलेक्शन. सो वी कैन से कि टट का जो टॉम्ब मिला, राइट they remain the richest royal collection ever found and have become part of the pharaoh's legend. pharaoh's legend यानी king's legends में से ये we can say कि सबसे ज्यादा richest collection टच के टॉम से मिला, right, and that is with the help of Carter obviously. स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, और क्या क्या चीजें थी, तो गोल्ड के आर्टिफैक्ट्स मिले, देयर इटर्नल ब्रिलियंस मींट टू गारंटी रिजरेक्शन, राइट क्योंकि ये सारा करने के पीछे जो कारण था, रिजरेक्शन मीन्स द रीबर्थ, राइट एज आई टोल्ड यू दैट they believe that there is a life after death, and after life they must requires all such things. Okay life after death तो वो believe करते ही है, but इसके अलावा वो सोचते हैं कि after life भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उन्हें assist करेगी, and that is the reason कि वो उनके साथ एक बॉडी के साथ ये सारी चीजें उससे रिलेटेड जो भी चीजें वो भी साथ में रखी जाती हैं, राइट तो ब्रिलियंस मीन टू गारंटी रिजरेक्शन, यानी जब भी रीबर्थ हो तो वो ऐसे ही जैसे किंग की तरह डेथ हुई थी वैसे ही किंग की तरह शायद वो रीबर्थ करे, ऐसा कुछ मानना हो सकता है उनका. कॉज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, राइट सो ऑब्वियसली ये जो एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी ये जब डिस्कवरी हुई तो दैट इज अ ग्रेट सेंसेशन वी कैन से, एंड ऑब्वियसली के मोस्ट अटेंशन भी इस चीज को मिला है, बट दैट वाज आल्सो बरीड विथ एवरीडे थिंग्स he'd want in the after life. एज आई टोल्ड यू के लोग क्या सोचते थे कि डेथ के बाद एक लाइफ होती है उनकी वहीं पे, राइट सो दे मस्ट रिक्वायर सम ऑफ द नीडी थिंग्स जो शायद वो रोज बरोज चीजें जो यूज करते हैं, उनकी फेवरेट कोई चीजें हो, ऐसी सारी चीजें उनके साथ दफनाई जाती है. तो तट के साथ रॉयल कलेक्शंस तो मिला ही, पर इसके अलावा भी एवरी डे थिंग्स भी उसके साथ मिले. फॉर एग्जाम्पल बोर्ड गेम्स मिली, ब्रॉन्ज रेजर मिला, लेनिन अंडरगारमेंट्स भी मिले, एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, ये सारी चीजें उसकी बॉडी के साथ रखी गई थी, राइट सो it clearly means that they believes a life after death, and after life they requires all such things, right उनके बॉर्डम को दूर करने के लिए उनके सी ब्रॉन्ज रेजर भी रखा गया, अंडरगारमेंट्स भी रखे गए, फूड वाइन्स एंड एवरी सच थिंग्स they must required after that. So after months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins, right? So after months, मतलब कुछ महीने लग गए इस बात को लेकर
केयरफुली रिकॉर्डिंग चलते रहे फेरोज के, राइट, फेरोज के किंग्स के जो फ्यूनररी ट्रेजर्स थे, जो भी रॉयल कलेक्शंस मिला है उस पर जांच की गई। देन कार्टर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू रखी और उसने 3 और नेस्टेड कॉफिन्स को भी इन्वेस्टिगेट किया। उसके साथ 3 और कॉफिन्स थे उसको भी इन्वेस्टिगेट किया गया, राइट। सो क्या हुआ उसमें आगे देखो। ओपनिंग द फर्स्ट, अब जब फर्स्ट कॉफिन खोला, ही फाउंड अ श्राउड अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलोज, जैसे अभी मैंने यही सब बताया, राइट, यही मैं पढ़ रही थी। सी श्राउड इनसाइड डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सेलरी, लोटस पेटल्स एंड कॉर्नफ्लावर्स, राइट। ये सारी चीजें उस फर्स्ट कॉफिन में रखी गई, यानी बहुत सारे फ्लावर्स थे उसके साथ, ऑलिव लीव्स थे, लोटस पेटल्स थे, कॉर्नफ्लावर्स थे, ऐसे सारी चीजें। इट इज टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ओके। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, ये जो एविडेंस मिले, ऑब्वियसली ये फेड हो चुके होंगे, क्योंकि इतने वक्त के बाद गार्लैंड्स और वो सब सूख गए होंगे, या बहुत कुछ तो टूटे फूटे टूट गए होंगे, राइट, सूखने के बाद पत्ते। ये एविडेंस पूरी तरीके से फेडेड है ऑफ अ ब्यूरियल, बट कब के हैं ये? मार्च और अप्रैल के वक्त के होंगे, ओके। क्यों मार्च और अप्रैल के वक्त बोला है? सी ऑल दिस प्लांट्स वुड हैव बीन अवेलेबल इन इजिप्ट इन March or April, so the faded evidence of the plant suggests that the king tut might have been buried in the month of March or April. See, यहाँ से इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि यूजुअली इजिप्ट में ये जितने भी फ्लावर्स के बारे में हमने स्टडी किया, नाम जो हमने सुने, वो सारे फ्लावर्स मार्च और अप्रैल मंथ में ही अवेलेबल होते हैं, यानी उस मंथ में शायद वो ग्रो होते होंगे। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि तट की जो डेथ है वो भी इसी मंथ में हुई होगी, दैट्स व्हाई यही सारे फ्लावर्स उस वक्त रखे गए। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble, और उसके बाद क्या हुआ, कार्टर फाइनली उस मम्मी यानी टट की बॉडी के पास आया, मम्मी के पास आया, तो उसे बहुत सारी ट्रबल्स हुई, ओके। द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, जो रिचुअल्स यानी मम्मी को बनाने के लिए जो भी वो मैंने बताया था रेजिन्स और वो सब जो डालता है, स्टिकी टाइप्स ऑफ दैट ऑल सच, जिससे वो क्या कर सकते हैं, मम्मी इसको फॉर्म करते हैं, राइट। सो वो जो भी मसाले वगैरह जो भी डाले थे, सो दैट के मम्मी काफी इयर्स तक एज इट इज वो बॉडी सड़े नहीं, इसलिए ये सब डाला जाता है, राइट। सो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड हो चुका था। सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, राइट। तो सीमेंटिंग जो थी वो टट के बॉटम तक जा चुकी थी और एकदम उसके जो गोल्ड कॉफिन में कंप्लीटली वो बैठ गई थी, इतना हार्ड हो चुका है। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और कोई भी आप मतलब वो इतनी हैवी हो गई है, मतलब वो इमूवेबल हो गई है, कोई उसे हिला नहीं सकता है, राइट। तो कोई भी अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट डाल दो, आप फोर्स को डाल दो, राइट, तो कोई भी फोर्स उसे हिला नहीं सकती है। सो कुछ भी कोई भी फोर्स लगा लो, कुछ भी कर लो, राइट, तो उसे हिलाना दैट इज इम्पॉसिबल, राइट। सो नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट यानी कोई रूल्स रेगुलेशंस भी आप डाल लो, बट इट वॉन्ट बी पॉसिबल टू मूव दैम। कार्टर wrote लेटर, व्हाट वाज टू बी डन, तो कार्टर ने एक लेटर लिखा कि अब आगे हम क्या करें, राइट। The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt, and Carter tried to use it to loosen the resins. तो फिर उसने सोचा, या फिर शायद सामने से जिसको लेटर लिखा उससे उसने ये जवाब दिया हो सकता है, वी कैन से, कि सन किसी भी चीज को पिघला सकता है लाइक अ हैमर, राइट। और वो क्योंकि वो एक डेजर्टी एरिया है इजिप्ट का, साउथ इन इजिप्ट, सो दे मस्ट थॉट के कोई भी टाइप का रेजिन्स हो या कुछ भी हो, राइट, ये सन ही एक ऐसी चीज है, गर्मी ही है जो उसे पिघला सकती है। तो कार्टर ने वही ट्राई किया टू लूजन द रेजिन्स। For several hours he set the mummy outside in blazing sunshine that heated in 149 degree Fahrenheit, right? तो कितने बहुत सारे घंटों तक उस मम्मी को सनशाइन्स में यानी सनरेज में रखा गया, और वहां की गर्मी कितनी थी? 149 डिग्री फ़ारेनहाइट थी। Nothing budged. What happened? कुछ भी काम नहीं किया, right? He reported with scientific detachment that, और फिर से उसने एक रिपोर्ट शुरू तय की, राइट। उसने साइंटिफिक डिटैच भी किया, साइंटिफिक डिटैचमेंट यानी साइंटिफिक रीजंस उसके साथ अटैच करना उस रिपोर्ट के साथ।
और क्या लिखा देखो, द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे फ्रॉम beneath द limbs एंड trunk बिफोर इट was possible to raise the king's remains. तो ये उसने लिखा उसमें कि जो भी कंसोलिडेटेड मटेरियल्स है उसे अब क्या कर, कंसोलिडेटेड मटेरियल्स यानी वो जो मम्मी है वो जितना भी उसके साथ जुड़ा हुआ है वो सारे मटेरियल्स को निकालने के लिए उसे चिजल्ड करना पड़ेगा. चिजल्ड यानी उसे हैमर और उससे तोड़ के वो सीमेंटिंग को अलग करना पड़ेगा. तो कहाँ से शुरू करना है, उसके बिनिथ द लिम्स, लिम्स के नीचे से, एंड द ट्रंक बिफोर इट वाज पॉसिबल. तो ही क्या होगा, क्योंकि वो क्या हो गया कि वो जो मम्मी है और गोल्ड कॉफिन है वो दोनों कंप्लीटली सीमेंटिंग चिपक गया है, वो हार्ड हो चुका है. अब उस कॉफिन में से उस मम्मी को निकालना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है. राइट right? तो अगर उस किंग को, उस किंग्स के रिमेन्स को रेज करना है तो उसे चिजल्ड करना जरूरी है. इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस. अब इसके अलावा कार्टर के पास और कोई चॉइस है ही नहीं. राइट, सो इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, thieves must certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर वो नहीं करता ऐसा, right, if Carter really doesn't chiseled out the mummy, then what would be the condition, right? तो क्या होता कि मम्मी को वहां से अगर फ्री नहीं किया जाता तो थीव्स या चोर और चक्के वहां पे आ सकते थे. राइट, गार्ड्स को वो क्या करते, गार्ड्स को वो कैसे भी सरकमवेंटेड यानी अवॉइड करना. राइट, तो गार्ड्स को अवॉइड करके वो कैसे भी अंदर घुस जाते हैं और कैसे भी वो गोल्ड को निकालने की कोशिश करते हैं. और हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ होता तो वो मम्मी पूरी तरीके से टूट सकता था या कुछ ऐसा हो सकता था. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy. Tuts के वक्त यानी ये जब डायनेस्टी थी, Tuts की डायनेस्टी, they used to be very wealthy, fabulously wealthy. Okay, बहुत रॉयल लाइफ थी, बहुत पैसा था. And they thought or hoped they could take their riches with them. So they must have, उनकी एक ऐसी सोच भी थी या वो ऐसा मानते थे कि मरते वक्त भी वो अपने जितनी भी वो रिचनेस है वो साथ में लेके जाए. राइट, एंड दैट्स वाई वहां पे ये सब रखा गया हो. For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods. Right, so पूरी जर्नी तो टट्स के साथ वो lavished goods रहे, but after beyond that also it was with him, जैसे precious collars, right, inlaid necklaces, यानी ये उसके ज्वेलरीज की बात हो रही है. राइट, कॉलर्स प्रीशियस उसके साथ थे, फिर नेकलेसेस थे, ब्रेसलेट्स थे, रिंग, एम्यूलेट्स, सेरेमोनियल एप्रन था, सैंडल्स थे, शिट्स थे फॉर हिज फिंगर्स, फिंगर्स में पहनने के लिए, टोज में पहनने के लिए, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. तो ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे पढ़ी, right, which are some of the parts of jewelry we can say, okay, necklace, bracelets, rings and all such, जो भी body parts में हम जो भी jewelries पहन सकते हैं वो सारी की सारी, even the inner coffin and mask and everything was of pure gold. ठीक है, so you can imagine the royalty of that kings of in that time. Okay, to separate Tut from this, his adornments यानी उसका जो भी गोल्ड और वगैरह था उसमें से टट को अलग करना हो तो कार्टर्स मैन रिमूव द मम्मीज हेड एंड सर्व्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट. क्या किया अब कार्टर्स ने, कार्टर के जो लोग थे उन्होंने मम्मीज के हेड को और उसके नियरली सारे जॉइंट्स को अलग किया. राइट, सो वंस दे हैड फिनिश्ड दे रीअसेंबल्ड. तो उन्होंने मेन जो जॉइंट्स थे उनको अलग करके बाहर निकाला और जब वो सब निकाल दिया बाहर उसके बाद वापस उसे रीअसेंबल्ड किया. वापस उस जॉइंट्स को सारे जो भी उसके बॉडी पार्ट्स थे उसको, उस मम्मीज को वापस उसने फिर से रीअसेंबल्ड कर दिया, फिर से असेंबल किया. ठीक है, द रिमेन्स ऑन द लेयर, और कहाँ पे रखा, वुडन बॉक्स पर एक सैंड का लेयर बनाया उसके ऊपर, विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और उसमें पैडिंग करते गए सो दैट कि वो डैमेज को क्या कर सके, कंसील्ड कर सके. द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, तो एक ऐसा बेड रेडी किया जहां पे टट को अब रेस्ट वो मिल सके, वो डैमेज को कंसील कर दिया, वुडन बॉक्स पर एक सैंड की लेयर बना दी, तो इस तरीके से एक गद्दे जैसा एक टेक्सचर बना के वहां पे उसको रख दिया. Archaeology has changed substantially in the intervening decades.
अब क्या हो गया, वी ऑल नो दैट इम्प्रूवमेंट्स आती रहती है, टेक्नोलॉजीज में इम्प्रूवमेंट्स आ रही है, तो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च भी सब्सटेंशियली चेंज होते रह रहे हैं, राइट। डिकेड्स और डिकेड्स में नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए नए स्टाइल्स और मेथोडोलॉजी आ रही है, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. So अब ये आर्कियोलॉजी उस हद तक आ गई है कि अब वो ट्रेजर्स को फोकस कम करे, क्योंकि पहले ट्रेजर को ज्यादा फोकस किया गया कि इतना ट्रेजर उसके पास था, सो उसके ट्रेजर्स को फोकस कम करके क्या किया गया, सो फैक्सिनेटिंग डिटेल्स पे हम सबसे ज्यादा किस पे ध्यान दें कि ट्रेजर्स को इग्नोर करें और उस टर्च की लाइफ क्या थी, उसके फैक्सिनेटिंग डिटेल्स को फाइंड आउट करें, उसकी जो मिस्ट्री थी डेथ के बिहाइंड की, कि उसकी मिस्ट्री क्या, उसके डेथ कैसे हुआ या क्या हुआ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। सो इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफेस्टिकेटेड टूल्स, तो बहुत सारे सोफेस्टिकेटेड टूल्स भी उन्होंने यूज किए, राइट जैसे इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी सारी यूज करने की कोशिश की। इन 1968 मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, तो 1968 यानी कार्टर ने डिस्कवर किया था 1922 में, ठीक है, तो 40 years के बाद, उस डिस्कवरी के बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर, एनाटॉमी का मतलब मैंने आगे समझा दिया पार्ट 1 में, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ स्टडी of human beings, of human body and animals and all such, okay, so us anatomy professor ने x-ray किया his mummy and revealed a startling fact, ठीक है, so उस मम्मी को उन्होंने एक्सरे किया और बहुत सारे फैक्ट्स बाहर आए, that beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing, ये हमने स्टडी किया था आगे, राइट, कि उस एक्सरे से ये पता चला कि उसका चेस्ट का जो ब्रेस्ट बोन है वो और उसके रीब्स मिस है, ठीक है, वो नहीं मिले उस एक्सरे में। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिन can be done with computed tomography और सिटी स्कैन। तो सिटी का फुल फॉर्म क्या है, हम बार बार सिटी स्कैन बोल रहे हैं, तो सिटी स्कैन का मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है, उसका फुल फॉर्म ये है। सो टुडे डायग्नोस्टिक, जैसे डॉक्टर हमें डायग्नोस देता है कि ये करना है या ऐसे करना है या ये फॉलो करना है, ठीक है, तो टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी और सिटी, by which hundreds of x-rays in cross sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body, ठीक है, तो अब हम जो करने जा रहे हैं वो क्या होगा, मतलब हम इन द सेंस के वो जो एनाटॉमी प्रोफेसर है वो जिस तरीके से एक्सरेज और उसके बाद जो सिटी स्कैन की बात हुई, राइट, सो अब जो डायग्नोज हम लेने जा रहे हैं वो सिटी स्कैन वाला है, तो यहाँ पे मम्मीज को रखा जाएगा और मम्मी को रखने के बाद उसकी जैसे एक ब्रेड की स्लाइस हो, राइट, उसे हम नंबर्स ऑफ पीसेस में कट करके उसको जस्टिफाई करें, ठीक है, वैसे ही एक बॉडी के हर एक पीसेस को, राइट, यहाँ पे स्कैन किए जाएंगे, तो नंबर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज निकाले जाएंगे हर एक छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स के, ठीक है, इसे क्रॉस सेक्शंस में किया जाएगा, राइट, are put together like slice of bread, okay, to create a three dimensional virtual of body से क्या होगा कि आप हर एक माइनर से माइनर पार्ट ऑफ बॉडी को अच्छे से जस्टिफाई कर पाएंगे या अच्छे से उसका स्कैनिंग, इससे क्या हमें आइडिया आएगा कि उसकी बॉडी में ऐसा कुछ मिस्टीरियस कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, क्या था, इसलिए, ठीक है। What more would a CT scan reveal of touch than the X-ray? सी जब एक्सरे किया तो एक्सरे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि कुछ भी मिस्टीरियस सामने नहीं आया, ठीक है, जब एक्सरे हुआ था वी हैव read on that summary, right, we have read in summary that एक्सरे में कुछ भी मिस्टीरियस सामने नहीं आया था, and then they decided to go to CT scan. So क्वेश्चन ये है कि जो चीज एक्सरे में सामने नहीं आई है, might there are any chances to get something new in CT scan, right, कुछ रिवील होगा टच के बारे में, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him, how did he die and how old was he at the time of his death? See, ये जो है पॉइंट, ये कंप्लीटली हमारे लिए क्या कहते हैं कि क्वेश्चन मार्क है, दो क्वेश्चंस ही अराइज हो रहे हैं बार बार, राइट, वन क्वेश्चन इज दैट इज कि हाउ ही डाई,
ये एक अनएक्सपेक्टेड डेथ थी, किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, उसे हार्ट अटैक आया था या वो बीमार था या वो मारा गया था या उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है. देयर इज नो सच क्लियर रीजंस गिवन और वी नो सच क्लियर रीजंस, राइट. So there is always a question behind this whenever we talk about Tut, that is how did he die, right? And how old was he at the time of his death? तो उसकी जब डेथ हुई तब उसकी एज क्या होगी? Because we are researching on a part that is around 3300 years ago. ठीक है, तट के बारे में आज हम रिसर्च कर रहे हैं और उस वक्त को कितना टाइम हो गया, 3300 years ago उसकी डेथ को तट के. ठीक है, so today to research all such things, it would be very difficult, and to find out such things, that is also very difficult. But even they are trying to reach out the topic or to reach out that point of view कि क्या हुआ था उसके साथ. ठीक है, that mystery को solve करने की कोशिश हो रही है. किंग टट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. तो किंग टट्स के बारे में जो हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं या उसका जो डिमाइज है, so demise, that is his death. Okay, so King's demise was a big event. तो ये जो अभी जो सिचुएशन चल रही है, वॉट एवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट, राइट, तो सबसे बड़ी इवेंट उस वक्त पब्लिक के लिए क्या थी, दैट इज हिज डेथ. ओके, ये जो इवेंट है टू फाइंड आउट वेदर व्हाट हैड हैपेंड टू हिम, राइट, दैट वन इज द बिग इवेंट इवन द बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स. तो रॉयल स्टैंडर्ड्स के लिए भी ऐसा हो गया है कि अब ये जानना जरूरी है कि व्हाट हैड हैपेंड टू हिम. He was the last of his family's line, right? We all know that after that dynasty came to end. Okay, so he was the last of his family's line and his funeral was the death rattle of a dynasty. तो ऑब्वियसली कि उसके डेथ के बाद उसका फनरल यानी उसकी डेथ होने के बाद क्या हो गया, वो डायनेस्टी की भी, वो कह सकते हैं हम, आग लग गई, खत्म हो गया है डायनेस्टी भी उसका. फनरल आग जलाते हैं, जो डेड बॉडीज को आग लगाते हैं, दैट इज वी कॉल फनरल फायर. ओके, so but the particulars of his passing away and its aftermath are unclear. तो वही पे हम रिसर्च कर रहे हैं, राइट. ऑल सच पर्टिकुलर्स आर पासिंग अवे. हम जो भी अभी कमेंट्स कर रहे हैं या हम जो कुछ भी डिस्कशंस कर रहे हैं, दिस आर ओनली वी कैन से के एक फैक्ट्स बता रहे हैं, या वी आर नॉट टोटली श्योर अबाउट इट. हम सिर्फ अप्रोक्सीमेटली या अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, सपोजिशन कर रहे हैं कि या तो उसकी डेथ हुई हो सकती है या उसका मर्डर हो सकता है, वो इतना बड़ा किंग है, राइट. सो देर इज नथिंग सच लाइक अ पर्टिकुलर रीजंस वी हैव टू क्लियर इट आउट. ओके, सो इट्स आफ्टर मथार अनक्लियर. तो उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, वो सब कुछ अनक्लियर है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग माई लेक्चर हियर. ये स्टोरी हम, ये रिपोर्ट हम यहीं तक रखते हैं, राइट, कि उसके साथ अब क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट, उसके रिपोर्ट्स क्या है, सिटी स्कैन के इमेजेस क्या है, एक्सरेज क्या है, विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर. होप यू गॉट दिस report up till here clearly. Okay, so take care, bye bye.